Class 8, we will start in your Science NCERT, Chapter 5, Coal and Petroleum. So, we use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. जो चीज़ें हमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहिए वो कुछ नेचुरली ऑकरिंग है और कुछ मैन मेड है. तो एक्टिविटी 5.1 देखिए. Make a list of various materials used by us in daily life and classify them as natural and man-made. तो नेचुरल में आपके आप बहुत सारी चीज़ों को लिस्ट कर सकते हैं, जैसे वाटर, सनलाइट, एयर, सॉइल, कोल, पेट्रोल. LPG is liquefied petroleum gas. CNG is compressed natural gas. Then minerals are there and fruits are there. In the same way, there are many things which are made by man, like plastic, rubber, TV, refrigerator, lassi, food, bed, car, bicycle, toffees, biscuits, etc. So, does this list include air, water, soil, and minerals? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. तो अगर इसमें air, water, soil और minerals हैं, so they are actually they are occurring in nature as such. So they are natural resources. So can we use all our natural resources forever? No, we cannot, because some of them are getting reduced day by day. Can air, water and soil be exhausted by human activities? खत्म हो जाएंगे क्या? You have already studied about water in class 7. Is water a limitless resource? No, it is not a limitless resource, because you know that lakes and rivers, they dry up and they have to be replenished by rain, etc., or by the snow capped mountains or Arctic and Antarctic reservoir of ice. So they are not actually not limitless. So water is also not a limitless source. So in the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से दो तरह के हैं, exhaustible and inexhaustible. So what are inexhaustible natural resources? Which are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. For example, sunlight and air. सूरज की रोशनी और हवा, ये inexhaustible. इसकी स्पेलिंग देखिए, INEXHAUSTIBLE, inexhaustible. तो ये जो है इसमें आता है सनलाइट और एयर, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे. एटलीस्ट the sun will remain for another, say, 500 crore years, and the air, as you know, is above 13 kilometers above the surface of the land. So they are quite in abundance, and they are supposed to be unlimited. But exhaustible natural resources are those in nature which are limited. They can be exhausted by human activities. Examples of these resources are like forests, wildlife, minerals, coal, petroleum and natural gas, etc. So आप देखिए इसको और सोचिए इनके बारे में. And activity 5.2. Now take some containers, fill them with popcorn, peanuts, roasted gram. पॉपकॉर्न आप जानते हैं, पीनट्स मूंगफली, रोस्टेड ग्राम भुने हुए चने, टॉफ़ीज़. Divide students into groups of 7 each. Further divide each group into 3 subgroups containing 1, 2 and 4 students. Label them as first, second and third generation respectively. Now these subgroups represent the consumers. As population is growing, second and third generations have larger number of consumers. So आपने ये ले लिया, हर एक को जो है, हर ग्रुप को आपने 7 ग्रुप्स में पहले बांट लीजिए और हर ग्रुप को फिर से जो है 3 सब ग्रुप्स में बांटिए, जिसमें 1 स्टूडेंट हो, 2 स्टूडेंट हो और 4. ठीक है. तो आपने कितने ग्रुप्स बनाए? पहले तो आपने
7 का एक ग्रुप बनाया, हर 7 में से 1, 2 और 4 के 3 ग्रुप्स और बना दिए। तो जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकंड वाला सेकंड, और 4 वाला थर्ड जनरेशन का हो गया। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और कंज्यूमर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। नाउ पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। हर एक के लिए एक कंटेनर रख दीजिए टेबल पे। और ask the consumers of the first generation from each group to consume eatable from the container of their group। पहले वाले फर्स्ट जनरेशन से कहिए कि वो उससे खाने के लिए ले लें। और now ask second generation consumers from each group to do the same। Ask students to observe carefully the availability of eatables in each container। तो जैसे जैसे आप थर्ड जनरेशन में पहुँचेंगे खाने के लिए सामान कम होता चला जाएगा। So if something is left in the containers, ask the third generation from each group to consume it। Now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not। Also observe if anything is still left in any of the containers। So naturally by the time the third generation group is reached, the eatables will become either very less or they will be finished। So sometimes nothing is left। So this is what happening in our nature also। If we are finishing all the resources, nothing will be left for the coming generations। So assume that the edibles or eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum और natural gas। तो आप समझिए कि पॉपकॉर्न टॉफ़ीज़ की बजाय उसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस आप जानते हैं मीथेन होती है। What is natural gas? This is methane or CH4। ठीक है। So each group may have a different consumption pattern। Are the earlier generations of any group too greedy? It may be that the earlier generations in some groups were concerned about the coming generations and left something for them। अब या तो फर्स्ट जनरेशन वाले बहुत ही ग्रीडी लालची थे तो उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा आने वाली जनरेशन्स के लिए, और या फिर जो है उन्होंने सोचा आने वाली जनरेशन्स के बारे में कि उनके लिए हम कुछ छोड़ के जाएं। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट जनरेशन। So everyone should think of the coming generations। So in this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas। These were formed from the dead remains of living organisms or fossils, so these are all known as fossil fuels। So what are fossil fuels? That or the resources which are formed from the dead remains of the living organisms, which were called fossils, are called fossil fuels। And what are they? Coal, petroleum and natural gas। Okay, they are all made of, in the past when these living organisms got buried, they turned into all these things like coal, petroleum and natural gas under a lot of pressure and high temperature and lack of oxygen। These are the three conditions for any these living organism who were died to turn into fossil fuels। Now let's start with coal। How is coal made, etc. You may have seen coal or heard about it। It is a hard as stone and is black in color। So this is coal। कोयला आपने देखा है। Coal is one of the fuels used to cook food। किस काम आता है? खाना बनाने के काम में। Earlier it was used in railway engines to produce steam to run the engine। तो पहले क्या होता था, रेलवे में जो इंजन हुआ करते थे तो उसमें कोयला जला के पानी को भाप में बदला जाता था, स्टीम में, और उस भाप की पावर से पहिए को घुमाया जाता था और इंजन चलता था। लगातार उसमें कोयला भरते रहना पड़ता था, जलता हुआ कोयला, जिससे जो है पानी जो है भाप बनता रहता था मशीन में और उससे जो है पहिया पिस्टन घूमता रहता था। तो अब जो है हमारे पास डीजल इंजन्स हैं और बिजली से चलने वाले इंजन्स हैं, इवन मैग्नेटिक इंजन्स आ गए हैं। तो अब वो जो टेक्नोलॉजी थी वो अब ऑब्सोलीट हो गई है। इट्स नो मोर इन यूज़। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है?
जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनमें भी क्या होता है कि जो कोल को जलाकर और उससे पानी को भाप में बदलते हैं। भाप जो होता है वो जनरेटर का जो उसका जो आर्मेचर होता है उसको घुमाता है और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये आप नेक्स्ट 10th क्लास में पढ़ेंगे कैसे जो है थर्मल पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल यूजेस भी बहुत हैं, यहाँ जो बड़े बड़े फर्नेसेस होती हैं, भट्टियाँ, तो उसमें भी कोयलों को जला के जो है बहुत कुछ किया जाता है। पिघलाने का काम है या अलग अलग प्रोसेसेस हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, उसमें ये यूज़ होता है। Now story of coal. Where do we get coal from and how is it formed? कहाँ से मिलता है, बनता कैसे? About 300 million years ago, 300 million means 30 crore. 30 crore years ago, the earth had dense forests in low-lying wetland areas. धरती पर जो थे, जो निचले एरियाज थे, उसमें बड़े घने जंगल थे। Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. इसमें जब कभी बाढ़ आ गई तो ये सारे के सारे जंगल दब गए ज़मीन के। As more soil deposited over them, they were compressed. अब उसके ऊपर और मट्टी जमती चली गई तो वो compress यानी दबते चले गए। The temperature also rose as they sank deeper and deeper. अब जैसे जैसे ज़्यादा गहरे में जाते चले गए टेम्परेचर भी बढ़ता चला गया। आप जानते हैं ना, धरती के अंदर जो है सबसे कोर जो होती है वो एक मोल्टन आयरन, जो पिघला हुआ लोहा है उसके अंदर, तो काफ़ी अंदर जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। जितने ये मरे हुए पेड़ पौधे थे ये सारे के सारे कोल में कन्वर्ट हो गए। तो क्या क्या कंडीशंस थी? अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। So these are the two conditions for these jungles to get converted into huge deposits of coal. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. So here what is carbonization? Coal is mainly made up of carbon, and the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. Right? इसको fossil fuel क्यों बोलते हैं? क्योंकि vegetation mean पेड़ पौधे, उनके बचे खुचे जो अंश थे उनसे ये कोल बना। तो ऐसे जो डेड रिमेन्स होते हैं ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड फॉसिल। अब क्योंकि उनसे ये फ्यूल मिल गया हमको तो इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल। नाउ सी हियर इट इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ अ कोल माइन। देखिए खुदाई करके अंदर जाया जाता है बहुत गहरे में और लिफ्ट्स के ज़रिए नीचे जाके फिर खदानों में से खुदाई करके कोयला जो है निकाला जाता है। इट इज़ अ हैज़र्डस प्रोसेस क्योंकि कई बार खदान में जाने पर जहरीली गैसें निकल आती हैं। और एक चास नाला बिहार में जगह थी जहाँ पे एक दीवार टूट के पानी आ गया था, तो कई मज़दूर जो थे वो उसी में डूब के मर गए थे। तो उस पर मूवी भी बनी थी एक काला पत्थर करके। तो जो है ये काफ़ी हैज़र्डस जॉब है। लेकिन कोल तो आपको पता ही है जाने कब से हमारे देश में और बाहर भी काम में आता रहा है। तो खदानें तो जो है जो माइंस हैं वो चलती रहती हैं। So when heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. अब अगर आप कोल को जलाएंगे तो क्या रिएक्शन होगा? कार्बन जो है वो जलेगा ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो उसको हम अपर एरो से दिखा देते हैं। Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. अब कोल जो है सिर्फ कोल के फॉर्म में ही नहीं जलाया जाता, उससे हम दूसरी चीज़ें भी बना लेते हैं जैसे कोक, कोल टार और कोल गैस। अब देखते हैं ये सब चीज़ें क्या है। कोक क्या है? कोक इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। बहुत ही हार्ड होता है, उसमें कुछ पोर्स होते हैं यानी कि उसमें छेद टाइप के होते हैं और ब्लैक कलर का होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इसमें सिर्फ कार्बन बहुत ज़्यादा होता है
कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। ये कहाँ यूज़ करा जाता है? स्टील बनाने में। जो स्टील आप जानते हैं इसमें कार्बन मिला दिया जाता है आयरन में। आयरन को पिघला के उसमें कुछ परसेंट कोक की मिला दी जाती है तो उससे स्टील बन जाती है। और एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि प्योर स्टेट में लाना मेटल्स को, जो उनको माइनिंग करके निकाला। फिर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, जिसके द्वारा जो है हम किसी भी मेटल को उसके प्योर फॉर्म में लेकर आते हैं। तो दैट इज़ नोन एज एक्सट्रैक्शन। तो उसको मेटल्स को प्योर फॉर्म में लाने के लिए भी कोक से ट्रीट करा जाता है और जो है उसमें से ऑक्सीजन वगैरह रिमूव करी जाती है या दूसरे जितने सब्सटेंसेस हैं उनको ऑक्सीडाइज करके निकाल दिया जाता है। तो कोक वहाँ यूज़ होता है। ना कोल टार क्या है? कोल टार इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड। एक काला सा गाढ़ा सा पदार्थ होता है, द्रव्य होता है, विद एन अनप्लेजेंट स्मेल एंड बैड स्मेल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। कोल तार में क्या क्या है? लगभग 200 सब्सटेंसेस हैं। यू नो एवरीथिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस। इसमें 200 सब्सटेंसेस हैं। प्रोडक्ट्स obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry। तो उसमें जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में और इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। जैसे सिंथेटिक डाइज, नकली जो रंग होते हैं, ड्रग्स, दवाएं, एक्सप्लोसिव्स जो ये विस्फोटक पदार्थ, परफ्यूम्स जो हमारे ये परफ्यूम्स होते हैं खुशबूदार, जो भी हमारे सेंट वगैरह, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स जिससे हम छतें बनाते हैं, एट्सेट्रा। Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar। naphthalene balls आपने देखेंगे सफ़ेद कलर की, जो गर्म कपड़ों में रख दी जाती हैं। कोई नीम के पत्ते रख देते हैं, कोई naphthalene balls रख देते हैं ताकि कीड़े ना लगे उसमें। तो ये भी जो है कोल तार से ही हमें मिलता है। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads। अब जो है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होता है बिट्यूमेन। पेट्रोलियम क्या होता है ये अभी आप पढ़ेंगे। तो बिट्यूमेन उससे मिलता है, उससे जो है हम रोड्स बनाते हैं, ना कि कोल टार। पहले कोल टार से बनती थी, आपने देखा होगा ना। कोल टार पहले हमने बजरी डाल दी, फिर उसके ऊपर कोल टार डाल के उसके बाद ये रोड रोलर्स वगैरह चला के उसको लेवल किया जाता है। तो अब उसकी जगह बिट्यूमेन यूज़ किया जाता है, BITUMEN। अब हम आते हैं कोल गैस क्या है। कोल गैस इज obtained ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब आप कोल से कोक बनाते हैं तो उसमें एक गैस मिलती है जिसका नाम है कोल गैस। सो इसके बारे में पढ़िए। इट वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 and in New York around 1820। Nowadays it is used as a source of heat rather than light। तो कोल गैस से पहले जो है सड़कों पे रोशनी की जाती थी न्यूयॉर्क में और लंदन में 1810-20 में। अब जो है इससे गर्मी पैदा करी जाती है। इट्स लाइक अ फ्यूल रादर देन अ लाइट रिसोर्स। तो कोल गैस आपको बताया मैंने, जब हम कोल से कोक बनाते हैं तब मिलती है ये गैस। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मनी इंडस्ट्रीज़। ये कई इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल की तरह यूज़ की जाती है। और विच आर सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो कोल जहाँ प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस का मतलब उसको उससे कुछ बनाना या और कोई चीज़ ऑब्टेन करना, तो ये सब प्रोसेसिंग होती है। तो उसके पास ही जो है इंडस्ट्रीज़ जो हैं तो उसमें एज ए फ्यूल क्या यूज़ करेंगे? कोल गैस। अब हम आते हैं पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड। जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है दे आर वेरी रिच इन पेट्रोलियम। उनमें ऑयल वेल्स हैं और उनके पास जो कमाई होती है उस तेल को बेच के, उस पेट्रोलियम को बेच के, उसको पेट्रो डॉलर्स कहा जाता है। दे आर वेरी रिच कंट्रीज। वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज़ कुवैत। So all these Middle Eastern countries are very rich। So you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars।
पेट्रोल आप जानते हैं उससे क्या क्या चलता है, बाइक्स चलती हैं, स्कूटर और कार्स चलती हैं। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। और जितने ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक्स हैं, या आपके डीजल इंजन जैसे पानी खींचा जाता है धरती में से, सब डीजल से चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। ये मिलता किससे है पेट्रोल और डीजल? पेट्रोलियम से। अब ये पेट्रोलियम कहाँ से आता है? डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। अब ये पेट्रोलियम बना किससे? जो समंदर के जानवर थे। As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. तो ये जब समंदर की तली पे मर के गिरे तो इनके ऊपर मट्टी और रेत की परतें जमती चली गईं और ये दबते चले गए। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल में, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो लाखों साल में जब वहाँ हवा नहीं थी अंदर, हाई टेम्परेचर था, हाई प्रेशर था, ये जितने डेड ऑर्गेनिजम्स थे ये किस में बदल गए? पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। आप ये देखिए, ये जो आपके पास यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है आपको, तो उसको आप स्टडी करिए और उसमें आप देखिए कि कैसे ये बनता है। देखिए, अब इस वाले फिगर को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। तो सबसे जो ऊपर है ये आप देख रहे हैं धरती, उससे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो ये जो चट्टानें हैं, जो लाइनें खिंची हुई हैं, ये ऐसी चट्टानें हैं जिसमें से होके पानी सीप नहीं करता। आप थोड़ा और अंदर को जाएंगे तो आपको ये मिलेगा यहाँ पर ये जो लाइनें ये बनी हुई हैं, छोटी छोटी लाइनें, तो इसके और ये भी रॉक्स हैं और इसके अंदर वाली भी रिजर्वायर रॉक है। ये इन दोनों के बीच में सबसे नीचे वाटर है, उसके ऊपर ऑयल है और उसके ऊपर गैस है। अब क्या करते हैं, जब खुदाई करते हैं, ये वेल है एक, तो उसका एक आर्म जो है वो गैस में है और दूसरी आर्म ऑयल में है। तो ये खोज करनी पड़ती है कहाँ पे इस तरह का अवेलेबिलिटी है, इस तरह ऑयल और गैस की। उसमें भी बहुत पैसा लगाया जाता है खोज करने के लिए। मिल जाता है तो जो है यहाँ पर उनको हम बाहर निकालते हैं वेल्स के ज़रिए। तो अब ये यहाँ रेतीले क्षेत्रों में क्यों ये ज़्यादा है? हो सकता है यहाँ कभी समंदर रहा हो जो सूख गया और उसी में जो है जितने जानवर थे समंदर के दब गए और वो ऑयल और पेट्रोलियम में बदल गए, और वही आज जो है हमें रेगिस्तान में उसके ऑयल वेल्स मिलते हैं। तो आपको क्या करना है? लुक एट द फिगर, इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. अब आपने यहाँ देखा था ना कि नीचे जो था पानी था, सबसे नीचे ये पानी के ऊपर ऑयल और गैस थी। ठीक है, तो पानी के ऊपर मिलता है ये। Why it is so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. कारण क्या है कि ऑयल जो है वो पानी से हल्का होता है। आप ले सकते हैं, एक ग्लास में पानी लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा तेल डालिए, तो आप क्या देखेंगे? तेल ऊपर तैर रहा है। तो ऐसे ही धरती के अंदर हो रहा है। गैस उससे भी हल्की होती है तो सबसे ऊपर होती है, और पानी जो है ऑयल के साथ मिक्स भी नहीं करता, तो इसीलिए हम ऑयल को निकाल सकते हैं, नहीं तो अलग अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता। So the world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. पेंसिल्वेनिया एक जगह है अमेरिका में, तो वहाँ पे सबसे पहले ऑयल वेल बनाया गया था। 8 years later in 1867 oil was struck in माकुम इन असम। हमारे देश में असम में माकुम में दूसरा मिला इन इंडिया। ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई, हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। हमारे यहाँ कहाँ कहाँ मिलता है ये? असम में बहुत सारे ऑयल वेल्स हैं, गुजरात में है, मुंबई हाई जो है जो वहाँ समंदर तट है उसमें, और रिवर बेसिन्स जो हैं गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी रिवर जो है ये साउथ की रिवर्स हैं बेसिकली, और कृष्णा उनके भी तलहटी में मिलता है ऑयल। अब जो है पेट्रोल तो आपने निकाल लिया वेल्स से, पेट्रोलियम कहते हैं उसको रिफाइन भी करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं यूज़ कर सकते हम।
उसी से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है ऑब्टेन करेंगे. पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड. इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ओडर. ओडर मीन स्मेल. उसकी बड़ी बुरी स्मेल होती है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating oil, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक ही नहीं है. तो सबसे पहले तो गैस निकलती है, पेट्रोलियम गैस. जो एलपीजी होती है वही होती है पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. दैट इज़ a mixture of butane, which is mainly butane. Butane is C4H10. That is the formula of butane. और इसमें पेट्रोल और डीजल भी होता है. लुब्रिकेटिंग ऑयल, जिससे कि आप जो है मशीनरी को लुब्रिकेट करते हैं ना, जिससे आप ग्रीजिंग करते हैं उसकी. और पैराफिन वैक्स भी होती है, जिससे हम मोमबत्तियाँ वगैरह बनाते हैं. तो ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम में मिलती हैं. द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents of the fractions of petroleum is known as refining. अब इनको अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है. तो ये एक देखिए पेट्रोलियम रिफाइनरी है. तो इसमें जो है अलग अलग पोर्शंस में अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सबसे ऊपर हमें गैस मिलेगी, पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलेगा, लास्ट में पैराफिन वैक्स मिलेगी. तो यहाँ पर हम इस पेट्रोलियम से अलग अलग प्रोडक्ट्स प्राप्त करते हैं. तो इस प्रोसेस को रिफाइनिंग बोलते हैं. इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. सो दिस इज़ अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. Now various constituents of petroleum and their uses are given in table 5.1. तो इसको आप स्टडी करके याद करिए. सबसे पहले पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विच इज़ यूज फॉर होम एंड इंडस्ट्री. आप जानते हैं पेट्रोल, आप जानते हैं मोटर में फ्यूल के. एविएशन का मतलब है हवाई जहाज़ में भी चलाने में पेट्रोल यूज़ होता है. सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग. सॉल्वेंट होता है जैसे पेट्रोल में घोल लिया हमने, ड्राई क्लीन करना है आपको कपड़ों को, तो पेट्रोल से धोया जाता है उनको. सॉल्वेंट होता है जिसमें घोला जाए कुछ, तो उसमें भी ये यूज़ होता है ड्राई क्लीनिंग में. कैरोसिन आपको पता है स्टोव्स में जलता है, लैम्प्स में जलता है. और जेट इंजन्स में जो एयरक्राफ्ट के हैं उसमें भी कैरोसिन यूज़ होता है. प्लीज़ रिमेंबर दिस. एक तो घरों में आप जला रहे हैं लालटेन वगैरह में, दूसरा जेट एयरक्राफ्ट्स में भी ये एज अ फ्यूल यूज़ होता है कैरोसिन. देन डीजल, आप जानते हैं हैवी वाटर व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में डीजल के, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं जनरेटर्स में घरों में. और साथ ही जितने भी आपके जो डीजल इंजन जिससे पानी खींचा जाता है, तो उसमें डीजल यूज़ होता है. दैन लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर लुब्रिकेशन, ग्रीजिंग के काम में आता है. पैराफिन वैक्स ऑइंटमेंट्स बनाने में, कैंडल्स बनाने में, वैसलीन वगैरह बनाने में. बिटुमेन भी मिलता है इससे, एक तरह का कोल का ही सब्स्टिट्यूट है. ये पेंट्स और रोड सर्फिसिंग के काम में आता है. अब देखिए मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स. दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स. जो इससे पेट्रोकेमिकल्स मिलते हैं उससे क्या क्या डिटर्जेंट्स बनते हैं जिससे कपड़े धोए जाते हैं. फाइबर्स लाइक पॉलिएस्टर, नायलन, एक्रेलिक एक्सेट्रा. आपको बता दिया गया है ना मैन मेड फाइबर्स के बारे में. तो पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक वगैरह ये सब जो है ये पेट्रोकेमिकल्स से बनते हैं. पॉलीथीन जो आप यूज़ करते हैं एंड दूसरे मैन मेड प्लास्टिक्स, ये भी सब इसी से बनते हैं. इथीन एक गैस होती है, तो उसको पॉलीमराइज करके पॉलीथीन जो आप यूज़ करते हैं ना, जिनको बैन भी कर दिया गया है बिकॉज दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, तो वो भी जो है इन्हीं पेट्रोकेमिकल्स से बनते हैं. हाइड्रोजन गैस obtained from natural gas is used in the production of fertilizers like urea. Due to its great commercial importance, petroleum is also called black gold. तो नेचुरल गैस मैंने बताया मीथेन, उससे हाइड्रोजन बनती है. तो हाइड्रोजन जो है वो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने के काम में आती है.
जैसे यूरिया एक्सेट्रा। तो इसको हम पेट्रोलियम को इसीलिए ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। हम देखते हैं नेचुरल गैस कहाँ है, कैसे बनती है, क्या होता है। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। पाइप से हम जितनी गैसेस हैं, फ्यूल्स हैं, उनको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप क्या करेंगे, जब गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाती हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे फिर गैस बन जाएंगी। तो ये कंप्रेस कर लिया जाता है नेचुरल गैस को। अब वो कहलाती है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन। इससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सो इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज ऑफ इट्स लेस पॉल्यूटिंग। इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग एंड इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। अब क्या हो गया ना, अब पेट्रोल डीजल की जो व्हीकल्स हैं उन पर तो बैन ही लगा दिया गया है बड़े शहरों में। अब सिर्फ CNG ही चलते हैं, बसेस भी और 3 व्हीलर्स भी। और अब तो आप जानते ही हैं बैटरी वाले रिक्शा चलने लगे हैं। तो ये सब पॉल्यूशन कम करने की जो डिवाइसेस हैं, क्योंकि हमारा अर्थ जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रही है। तो हमें ऑल्टरनेट उनके ढूंढने हैं, इन पेट्रोल के, डीजल के। ख़त्म भी हो रहे हैं ये धीरे धीरे। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. तो इसको डायरेक्टली हम पाइप्स के ज़रिए भी भेजा जाता है। हमारे यहाँ तो गैस के सिलेंडर आते हैं। अगर आसपास कहीं ये गैस प्रोड्यूस हो रही है तो बहुत दूर दूर तक पाइप्स के ज़रिए डायरेक्ट घरों में कनेक्शन भेज दिया जाता है। उसका लंप सम पर मंथ ले लिया जाता है और उससे क्या होता है, डायरेक्ट जो है घरों में फ्यूल चला जाता है। फैक्ट्रीज में भी भेजा जाता है तो पाइप्स के ज़रिए। तो सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा इन गुजरात। बड़ौदा पुराना नाम था इसका, गुजरात में। एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। कुछ जगहों में दिल्ली में और कुछ और जगहों पर पाइप्स के ज़रिए नेचुरल गैस को भेजा जाता है। Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. Natural gas से बहुत कुछ बनते हैं, chemicals, fertilizers. India has vast reserves of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra, and in the Krishna Godavari Delta. हमारे यहाँ पर नेचुरल गैस के बहुत सारे भंडार मिले हैं। तो मार्श जो होती है, दलदली ज़मीन, उससे भी नेचुरल गैस निकलती है, बनती है। उसी से है जो अंदर पेड़ पौधे दब जाते हैं, फिर वो डिके होते हैं, तो उससे जो है ये गैस बनती है। जो गोबर गैस प्लांट्स हैं उसमें भी यही नेचुरल गैस ही होती है, जो कि घरों में फ्यूल के काम में भी आती है और लाइट जलाने के काम में भी आती है। तो विलेजेस में इट इज़ ऑफ ग्रेट यूज़। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस be prepared in the laboratory from dead organisms? Yes, by decaying and fermenting them under pressure and in the absence of fear. All the dead and decaying organisms or their leftovers like vegetable peels, animal excreta, etc. can be converted into natural gas, and as I told you that through pipes they can go to the kitchen as well as lighting of homes, used as a fuel. And government also gives subsidies to set up these gobar gas plants in villages. So lab में it is very difficult to make them actually, but it's a very long and a slow process. You can make this, it's not impossible, but it will take a lot of time. Some natural resources are limited. So you have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forests, minerals, etc. फॉरेस्ट को आप काटते जाएंगे, नए पेड़ नहीं उगाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह मिनरल्स को खोदते चले जाएंगे और सारा यूज़ कर लेंगे तो मिनरल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। So you know that coal and petroleum are fossil fuels.
It required the dead organisms millions of years to get converted into these fuels. लाखों साल में ये बने. On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. कुछ साल ही, कुछ 100 साल बचेंगे. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. Air pollution होता है. So their use is also linked to global warming. हमने बताया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, आप कई बार पढ़ चुके हैं कि जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है एटमॉस्फेयर में तो एक ब्लैंकेट सा बना लेती है धरती के ऊपर. तो जो सूरज की रोशनी जो आती है हमारी धरती पे, उसमें जो इंफ्रारेड रेज होती हैं उससे चीज़ें गर्म हो जाती हैं. तो ये जो गर्मी जो होती है ये जब सूरज डूबता है तो वापस जाती है स्पेस में. अब अगर इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट होएगी तो वो ट्रैप कर लेती है इंफ्रारेड रेज को, वापस नहीं जाने देती उन्हें. तो उससे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है गर्म हो जाता है और धरती का तापमान बढ़ जाता है. सो द एयर बिकम्स वार्म and the earth also becomes warm and it raises the temperature. So this is known as global warming. So therefore it is suggested that these fossil fuels should be used less and less. We are finding out alternate sources of energy. सबसे best is solar energy and hydroelectric power plants are there. Nuclear energy is also an option. So we are actually trying to depend less and less on these fossil fuels. So their use is also linked to global warming. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब यूज़ करें. So this will result in better environment, smaller risk of global warming and their availability for a longer period of time. ज़्यादा समय तक हमारे काम आती रहेंगी ये चीज़ें और ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी. ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं लोगों में. और जो आइस कैप्स हैं जो हमारे आर्कटिक एंटार्कटिक की या हमारे माउंटेन्स की और ये जितने ह्यूज माउंटेन्स जो उसके ऊपर आइस जमी रहती है तो वो पिघलने लगती है ग्लोबल वार्मिंग से और फिर बाढ़ आ जाती है और हमारा जो प्योर वाटर के जो रिसोर्स हैं वो भी डिप्लीट होने लगते हैं, कम होने लगते हैं. In India, the Petroleum Conservation Research Association, PCRA. This is an association in India. Petroleum Conservation Research Association advises people how to save petrol and diesel while driving. So their tips are, क्या करना चाहिए जब आप कार या अपना स्कूटर बाइक चला रहे हैं. Drive at a constant and moderate speed as far as possible. आराम से चलाइए, बहुत फास्ट मत चलाइए, क्योंकि जितना तेज़ आप चलाएंगे उतना आपका पेट्रोल डीजल खर्च होगा. स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेर यू हैव टू वेट. कहीं वेट करना पड़ जाए ट्रैफिक लाइट्स पे, इंजन बंद कर दीजिए. इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. आपके जो टायर्स हैं उसमें भी जो एयर का प्रेशर बराबर होना चाहिए. अगर जो है एयर कम होगी तो पेट्रोल ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा आपको इंजन चलाने के लिए. एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. अपनी व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस करवाते रहिए. तो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज अ फ्यूल. तो आप लिख सकते हैं कि द एडवांटेजेस आर दे आर क्लीनर फ्यूल्स, दे आर लो कॉस्ट फ्यूल्स एंड दे आर ईजिली अवेलेबल and they can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. Name the petroleum product used for surfacing of roads. You know that bitumen is a petroleum product which is used for surfacing the roads in place of coal tar. Describe how coal is formed from dead vegetation. What is this process called? So how is coal formed? About 300 million years ago, Earth was having dense forests in low-lying wetland areas. Due to earthquakes and volcanic eruptions, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed, and the temperature also raised as they sank deeper and deeper. Due to high temperature and lack of oxygen, dead plants inside the earth got slowly converted to coal. So as coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called
carbonization. Fill in the blanks. Fossil fuels are coal, petroleum, and natural gas. The process of separation of different constituents from petroleum is called refining. Least polluting fuel for vehicle is CNG, compressed natural gas. True or false? Fossil fuels can be made in the laboratory. No. False. CNG is more polluting fuel than petrol. False. Coke is almost pure form of carbon. True. Coal tar is a mixture of various substances. True. Kerosene is not a fossil fuel. False. Explain why fossil fuels are exhaustible natural resources. Fossil fuels are present in nature in a limited quantity and are being used, therefore they are getting exhausted by us. So they are called exhaustible natural resources. Describe the characteristics and uses of coke. Coke is a tough porous black substance. It is almost pure form of carbon. It is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. Explain the formation of petroleum. Petroleum is formed from organisms living in the sea. When these organisms died, their bodies got settled at the bottom of the sea and they were covered with the layers of sand and clay. Over millions of years, they were transformed into petroleum, oil and natural gas under the absence of air and presence of high temperature and high pressure. The following table shows the total power shortage in India from 91 to 97. Show the data in the form of a graph. Plot shortage percentage for the years on the y-axis and the year on the y-axis, x-axis. तो आप ये ग्राफ आपने प्लॉटिंग सीखी है तो वो आप बनाइए उसको और आप जो है एक्स एक्सिस पे आप शॉर्टेज दिखाइए परसेंटेज और ईयर्स में आप ईयर दिखा दीजिए 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 और जो है जितना परसेंटेज है उसको मार्क करके और जो है ग्राफ को बना के दिखा दीजिए. सो दिस फिनिशेज योर चैप्टर एंड प्लीज़ डू द क्वेश्चन आंसर्स एंड लर्न देम.